We've always heard that little steps make really big differences, and here is that initiative of taking one step closer to UPSC CSE 2024, and we understand that every day's efforts count. So, welcome to Anjan Kalashayas by Arpita Prakash, and we are here on day one with the topics for today. Okay? But before I show you the topics and we quickly discuss without doing any other kind of talking here. So before we quickly discuss the important pointers, I would just quickly like to take you through the entire slide. ठीक है, मैं एक बार भी ये browse करके आपको दिखा रही हूँ for the reason that you understand that what are the inputs that have gone in creating this presentation for you or video for you, so that at least you would be motivated to stay till the end because it is for you. There are certain prerequisites which I would just like to mention in the first lecture. We would not have to do that again in every day. So that's a something that you should follow every day. So just listen it out for today. Please have a pen, paper or digital devices, whatever, like wherever you would be writing. Use these slides or notes to actually write. ठीक है, you get it in a video form, so you can even pause it as per your convenience, but make the notes out of it and make it holistically, like एक बार करके इसको आज ही खत्म कर देने का है. ठीक है, and if you are continuing with the video, बीच में कुछ और भी आपको additional चीज़ें बताऊंगी which are not mentioned in the slides as such, but I really need to help you with that. So that will do. Now let's begin our discussion. The first subtopic that we are covering. अच्छा, एक और चीज़ समझ लो कि इसमें स्टैटिक सब्जेक्ट्स के टॉपिक्स भी हैं, 4 टॉपिक्स हैं. ठीक है, डिफरेंट सब्जेक्ट्स टू ब्रेक योर मोनोटनी एंड ऑल्सो टू गिव यू दैट ब्रेन ट्रेनिंग ऑफ मिसलेनियस टॉपिक. सेकेंडली PYQs आर अटैच्ड एज आई हैव शोन यू, जहाँ जहाँ भी नीडेड है. ठीक है, लॉट ऑफ PYQs, लाइक अ लॉट ऑफ really PYQs are attached along with the clips and everything, and उसका जो भी करंट अफेयर्स है, ठीक है, wherever it's needed that is also attached. So आप समझ लो कि आप स्टैटिक भी प्रिपेयर कर रहे हो फॉर दीज टॉपिक्स, PYQ भी कर रहे हो और करंट अफेयर्स भी कर रहे हो. ठीक है ना, चलो. सो हम पहला जो करेंगे वो होगा इंपॉर्टेंट कांग्रेस सेशंस एंड लीडर्स. ठीक है, फ्रॉम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, बट आई हैव टोल्ड यू वी वुड बी डूइंग इट इनटू चंक्स. नहीं तो स्पेक्ट्रम में देखो ऑलरेडी ऐसे भर के टेबल आपको पूरा दिया हुआ है. ठीक है, अभी चलो पहले स्पेक्ट्रम पे आते हैं. एंड इफ़ आई क्विकली टेक यू थ्रू, एकदम एंड में जो आप टेबल्स देखते हो ना वहाँ पे, ठीक है, दिस इज स्पेक्ट्रम का. इंडियन नेशनल कांग्रेस एनुअल सेशंस 1885 से स्टार्ट होके आप देखो दिस होल लिस्ट. ठीक है, ये होल लिस्ट आपको कहाँ तक ले जा रही है, 1965 तक ले जा रही है. अब आप सोचो, इज इट पॉसिबल फॉर यू टू रिमेंबर ऑल ऑफ दैट प्रैक्टिकली? You would already have the answer no. So the years that we are covering for today is 1885 to 1906, first chunk, and then we'll see it in different other things. ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में पूरी डिटेल हम ब्रिक्स की करेंगे. वाई ब्रिक्स आई जस्ट शो यू. देन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, आई शो यू हाउ मेनी क्वेश्चंस. ठीक है, ओनली बेस्ड ऑन दिस मच कैन बी आंसर्ड, एंड देन ऑफ कोर्स द रिमेनिंग DPSPs विल डू सम अदर डे. So that's from Indian polity. These articles will cover, and 4 important national parks, environment and ecology से. Why I have chosen these national parks again I'll tell you as we go ahead with the video. ठीक है, चलो. Firstly 1885 क्यों start हो रहा है? Because the Congress was formed in that year. I hope you know that's clear and that's also visible to you. ठीक है, 1885 में बॉम्बे में INC का फर्स्ट सेशन हुआ था. That was presided by व्योमकेश चंद्र बैनर्जी, WC बैनर्जी. That was the first session attended by 72 delegates. Objectives of the Congress was outlined. ठीक है, ये एक basic information है. Now, because we are taking the years from 1885 to 1906, we only need to focus on the important Congress sessions, the personalities associated, basically who presided it, the place where it was held, and if any important detail is outlined with that particular session. ठीक है, उसी के लिए मैंने यहाँ पे कुछ आपको, जिसमें ये सारे पॉइंटर्स हाईलाइटेड है ना, सिर्फ वो वाले ही करने हैं हमें. सो द 3 हियर एंड द 2 हियर. ठीक है, रिमेनिंग के लिए क्या करना है आई जस्ट टेल यू. सो फर्स्टली द पॉइंट्स टू रिमेंबर इन दिस, दैट द फर्स्ट सेशन ऑफ द कांग्रेस वॉज हेल्ड इन 1885 इन बॉम्बे. द प्रेसिडेंट वॉज WC बैनर्जी. ठीक है, ये हमने कर लिया. बट नाउ द क्वेश्चन इज, वॉज WC बैनर्जी the president of the Congress only once in the first session, or ever again, like any time again also he became? So the answer is twice. He again became the president in 1892, if you see here. ठीक है, that is why I marked it as A1, A2, because it is about the same personality. Why is this personality important? Because he was the president for the first session. तो याद रखेंगे वो 2 बार बने थे. Even if you forget the year,
जस्ट रिमेंबर दैट वो 2 बार बने थे, ठीक है. सेकेंड, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी. सो द नेक्स्ट पर्सन 1886 कैलकाटा में दादा भाई नायरोजी. मैंने मार्क करा है B1, B2, B3. यू कैन सी, ठीक है. दादा भाई नायरोजी के लिए यू आर सीइंग 3 सेशंस. सो ही हैज प्रिसाइडेड द कांग्रेस सेशन थ्राइस. 1886 में कैलकाटा में, 1893 में. यहाँ पे कुछ भी ऐसा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं हुआ था, देयरफॉर वी आर नॉट मेंशनिंग अबाउट इट, ठीक है. देन 1906 में कैलकाटा, फिर से कैलकाटा. सो दिस इज ऑल्सो ईजी फॉर यू टू रिमेंबर, कैलकाटा कैलकाटा, ठीक है. एंड हियर द स्वराज वर्ड वॉज मैंशनड फॉर द फर्स्ट टाइम, दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इट. सो दैट यू विल रिमेंबर, ठीक है. अब एक चीज़ और देखो, अभी तक ये जितने भी सेशंस हुए हैं, दीज आर ऑल द एनुअल सेशंस, बिकॉज कांग्रेस फॉर्मेशन टाइम दैट वाज डिसाइडेड दैट इन दिसंबर वी वुड हैव द एनुअल सेशंस. बीच बीच में कहीं कहीं पे कांग्रेस के कुछ स्पेशल सेशंस भी रखे जाते थे. तो एज वी विल प्रोसीड विल कम टू दो सेशंस एज वेल, या फिर एज यू विल रीड स्पेक्ट्रम व्हेन यू विल डू योर द होल नेशनल मूवमेंट वाला टॉपिक्स, तो यू हैव टू मार्क दो स्पेशल सेशंस ऑल्सो. बट अभी तक तो हमें दिख रहा है कि चलो ये सारे एनुअल सेशंस हैं, हर साल जो है दिसंबर में हो रहा है, तो हमको यहाँ पे कोई टेंशन लेना नहीं है. मूविंग ऑन, अनदर फैक्ट दैट यू विल रिमेंबर. सो विद दादा भाई नायरोजी इस वाले कांग्रेस सेशन में एक इंपॉर्टेंट चीज़ हुई थी, दैट वाज द मर्जर ऑफ INC एंड NC. व्हाट इज NC? INC यू नो, इंडियन नेशनल कांग्रेस. व्हाट इज NC? नेशनल कॉन्फ्रेंस, ठीक है. अब जब आप स्पेक्ट्रम पढ़ोगे, ठीक है, जब आप स्पेक्ट्रम पढ़ोगे तो इसमें जब आप स्टार्टिंग में वो कांग्रेस वाला चैप्टर पढ़ोगे, ठीक है, जहाँ पे हम फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस एंड इनिशियल फेज की बात करते हैं, आई जस्ट ट्राई एंड शो यू दैट एज वेल. जस्ट अलाउ मी अ मोमेंट एंड आई विल शो यू दैट. तो व्हेन यू डू द प्री कांग्रेस मूवमेंट्स, ठीक है, ये वाला जो चैप्टर है ना, जहाँ पे हम पढ़ते हैं द स्ट्रगल बिगिंस द बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इन इंडिया, सो यू ऑल्सो स्टडी इन दिस चैप्टर अबाउट द प्री कांग्रेस पॉलिटिकल एसोसिएशंस, ठीक है. तो उसमें ही देखो बंगाल वाले में एक और आपको मिलता है, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकाटा, ऑल्सो नोन एज द इंडियन नेशनल एसोसिएशन, ठीक है. अब यहाँ पे इसके बारे में एक इंफॉर्मेशन दी जाती है दैट द एसोसिएशन स्पॉन्सर्ड एन ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस, ठीक है, विच फर्स्ट टुक प्लेस इन कैलकाटा, ठीक है, दिसंबर 1883 में. उस टाइम पे उसमें लोगों ने अटेंड करा एंड उसके बाद इसको ऐसा माना जाता है इट वॉज अ फोर रनर ऑफ INC. वाई? बिकॉज ऑल इंडिया लेवल पे पीपल पार्टिसिपेटेड एंड लेटर इट मर्ज्ड विद द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1886. तो ये इसी कॉन्फ्रेंस की बात हो रही है, ठीक है. लेकिन उससे एसोसिएटेड ऑर्गेनाइजेशन दैट यू हैव टू रिमेंबर, इट इज दिस इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकाटा और इंडियन नेशनल एसोसिएशन. पीपल दैट यू विल रिमेंबर, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी एंड आनंद मोहन बोस, AM बोस, ठीक है, SN बैनर्जी, AM बोस. I hope that's clear to you. That is why I said keep writing. Many things I've written here, but many things will come with the slides and I'll keep showing the clippings of books and everything also. So if you do not have your things ready, if you're just watching it for the sake of watching, that's not going to help in clearing the exam. Let's be very clear about it. तो ये वाला हो गया, ये हमने समझ लिया, ठीक है. Another point that you'll remember is about the next person, सैयद बदरुद्दीन त्याबजी. अभी हम सीरीज में चल रहे हैं जहाँ तक इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फिर I'll keep skipping. 1887 मद्रास, यहाँ पे क्या हुआ था? अपील वॉज मेड टू द मुस्लिम्स टू जॉइन हैंड्स विथ अदर नेशनल लीडर्स. यू डोंट हैव टू रिमेंबर द नंबर ऑफ डेलीगेट्स फॉर अदर सेशंस, ओनली रिमेंबर इट फॉर द फर्स्ट सेशन 72, ठीक है. चलो, बदरुद्दीन त्याबजी के बारे में हमने ये डिटेल तो पढ़ ही लिया, अपील किया गया, पढ़ लिया, बट ही वॉज ऑल्सो द फर्स्ट मुस्लिम INC प्रेसिडेंट. वैसे भी ये लॉजिक है ना, ये स्पेशली कहीं लिखा हो या ना लिखा हो, आप खुद ही देखो, यहाँ से प्रेसिडेंट बनने स्टार्ट हो रहे हैं. First is WC Banerjee, next is Dadabhai Naoroji, next is Syed Badruddin Tyabji. So the first Muslim one to become. ठीक है. Why did I focus on this point? Because they have already given it as a question in 2015. The first Muslim president of INC was Badruddin Tyabji. तो ये option सही हो गया. I'm not giving you those 1, 2, 1, both and neither वाला option because अब उन options का कोई मतलब नहीं बचा है. Now you need to be very clear with the facts. ठीक है. चलो, next person पे आते हैं. अब ये जितने भी और बाकी लोगों के नाम हैं, यू जस्ट कैन मेक योर सेल्फ फेमिलियर विद द नेम्स ऑफ द पीपल, बट यू डोंट हैव टू गो इन टू द डिटेल्स ऑल्सो, बिकॉज यू विल सी ऐसा कोई स्पेशल डिटेल वहाँ पे किया भी नहीं गया है, ठीक है. अब उसमें कुछ नाम आप फेमिलियर कर लो खुद को. फिरोज शाह मेहता, P. आनंद चरलू, देन यू हैव सुरेंद्र बैनर्जी जिनके बारे में आपने अभी सुना, AM बोस जिनके बारे में आपने अभी सुना इन द नेशनल कॉन्फ्रेंस वन, एंड देन नेक्स्ट पर्सन यू हैव इज RC दत्त. अच्छा, इनके बारे में इसलिए भी आई एम टेलिंग यू बिकॉज अगेन एज यू प्रोसीड इन स्पेक्ट्रम, जब आप कांग्रेस वाला चैप्टर पढ़ते हो,
सो इनिशियल दे गिव यू द नेम्स ऑफ सो मेनी लीडर्स, ये देखो बदरुद्दीन तैयबजी, फिरोज शाह मेहता, आनंद चल्लू, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आर.सी. दत्त, ए.एम. बोस एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। सो जब आप इतने सारे नाम पढ़ लेते हो ना तो यू टेंड टू रीड एंड यू फील दैट ओके आई नो एवरीथिंग बट यू विल फॉरगेट। सो इसीलिए हम छोटे छोटे स्टेप्स में जो यहाँ पे जितने मैंने हाईलाइटेड करे हैं इतने लोगों का बस नाम ध्यान रख लेना, एंड एनी पॉइंट यू विल कम अक्रॉस अबाउट देम एज यू प्रोसीड विद स्पेक्ट्रम। डिफरेंट पॉइंट्स पे आपको इन सब के बारे में कुछ कुछ अलग अलग इन्फॉर्मेशन मिलेगी। लेट्स से somebody formed any organization, someone wrote a book, someone started any movement, whatever, ठीक है, तो उसको नोट कर लेना। नेक्स्ट पर्सन एज वी सेड इज आर.सी. दत्त। क्यों मैंने इनका बस हाईलाइट करके अभी छोड़ दिया, ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं बिकॉज आपको मैं क्वेश्चन पहले दिखाती हूँ देन विल प्रोसीड। ये देखो, ये एक ऑप्शन में ऑलरेडी फिगर आउट कर रहे हैं, ठीक है। हु ऑफ द फॉलोइंग वर इकोनॉमिक क्रिटिक, ये भी 2015 का क्वेश्चन है, इकोनॉमिक क्रिटिक ऑफ कोलोनियलिज्म इन इंडिया, ठीक है। दादा भाई नायरोजी, आर.सी. दत्त एंड जी सुब्रमण्य अय्यर। अब अगर आप स्पेक्ट्रम में देखोगे, ठीक है, मैं आपको एक बार स्पेक्ट्रम में इकोनॉमिक जहाँ पे डिस्कशंस हो रहे हैं वही दिखा देती हूँ। So you see, one chapter has a heading as Nationalist Critique of Colonial Economy. Of course, firstly, the most important person here is Dada Bhai Naoroji. They talk about the book and everything, poverty and un-British rule in India. ये आपको याद रखना है. But other economic analysts also, the names are given here, including Justice महादेव गोविंद रानाडे, M.G. रानाडे, R.C. दत्त, इनकी किताब का भी नाम दिया हुआ है, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले, जी सुब्रमण्य अय्यर एंड पृथ्वी चंद्र राय। देखो ये जो 4-5 नाम दिए गए हैं उनमें से 3 नाम आपको ऑलरेडी यहाँ मिल जा रहे हैं। सो द आंसर वुड हैव बीन ऑल ऑफ दीज। आई होप यू आर गेटिंग कि एक एक लाइन किताब की क्यों पढ़नी ज़रूरी है। आर.सी. दत्त पे इसीलिए मैंने फोकस किया था बिकॉज वो ऑप्शन में भी यहाँ आए हुए थे, ठीक है। अनदर थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर इज, ये मैंने इसलिए हाईलाइट नहीं करा, वाई डिड आई नॉट हाईलाइट दिस, बिकॉज यू विल नोटिस that it's already talking about land revenue, so demand for permanent fixation of land revenue। देखो ईयर कौन सा 1899, ठीक है, तब तक परमानेंट सेटलमेंट आप खुद ही बताओ आया था नहीं आया था, उसकी क्या बात हुई थी, ठीक है। यू शुड नो अबाउट द डिफरेंट लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स, और अगर कोई लाया था तो क्या नाम था एटसेट्रा, बिकॉज उन पे भी क्वेश्चंस आए हैं। एनीवेज दैट थीम इज डिफरेंट, सो विल टेक इट अप समटाइम्स लेटर। बट व्हाई डिड आई जस्ट रिलेटेड, बिकॉज ही वाज टॉकिंग अबाउट द इकोनॉमिक इश्यूज, राइट, इकोनॉमिक की किस तरह से ब्रिटिश जो एक्सप्लॉइट कर रही है, क्रिटिसाइज कर रहे थे, और ये भी इकोनॉमिक मामला है, इसीलिए इट्स ईजियर टू रिलेट टू इट, बट एज सच इसका कोई बहुत मेजर सिग्निफिकेंस नहीं है इन टर्म्स ऑफ रिमेंबरिंग। नेक्स्ट पॉइंट दैट यू विल रिमेंबर इज अबाउट गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, बिकॉज द ईयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो बनारस सेशन, यहाँ पे क्या था, एक्सप्रेस्ड रिजेंटमेंट अगेंस्ट द बंगाल पार्टीशन देन स्वदेशी मूवमेंट, इन पे बहुत क्वेश्चन आए हैं। दिस इज नॉट द टॉपिक एज सच दैट वी आर टेकिंग राइट नाउ, सो विल डील इट समटाइम्स लेटर, बट दिस इज अनदर फैक्ट दैट यू विल रिमेंबर अबाउट इट। देखो एक चीज़ समझो, हम जो कर रहे हैं वो है इंपॉर्टेंट INC सेशंस एंड लीडर्स। सो दिस ड्यूरेशन में, दिस टाइम पीरियड में इंपॉर्टेंट सेशंस एंड लीडर्स सबके ही बारे में पढ़ना है। सो सारे पॉइंटर्स आपको याद होने चाहिए। बट नाउ दैट वी हैव टेकन दिस क्वेश्चन एज वेल, इसका फर्स्ट ऑप्शन का पॉइंट अभी आया नहीं है, दैट ईयर हैज़ नॉट कम, बिकॉज दे आस्क यू द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ INC वो सरोजनी नायडू। आप जब वो पढ़ोगे तो एक 1917 का टाइम आएगा एंड 1925, सो दैट्स स्टिल लेटर टू कम, but because the question was here, so I'm addressing the other option as well, ठीक है। This is a wrong option. Why? Because the first women president was Annie Besant, 1917 Calcutta, ठीक है। First Indian woman was Sarojini Naidu, who was the president. That was 1925 कानपुर। Again ये भी आपको स्पेक्ट्रम में मिल जाएगा जब आप एंड में I'll just show you that list, you will see, so you'll automatically get that information, ठीक है। ये देख लो एनी बेसेंट का कहाँ पर है और सरोजनी नायडू का कहाँ पर है, बट व्हेन विल कम टू दैट ड्यूरेशन वी विल अगेन टॉक अबाउट इट। इट वाज जस्ट इन कॉन्टेक्स्ट टू दिस क्वेश्चन। आई होप नाउ यू हैव अंडरस्टूड इट। लेट्स सी अनदर थिंग, बिकॉज एनी बेसेंट पे हमने डिस्कशन कर लिया। सो एनी बेसेंट पे अनदर स्पेसिफिक क्वेश्चन हैड बीन आस्क्ड इन 2013 दैट एनी बेसेंट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टार्टिंग द होम रूल मूवमेंट। चलो राइट नाउ वी हैव नॉट डन दिस, बट इफ यू हैव प्रिपेयर्ड यू नो दिस इज अ राइट ऑप्शन, ठीक है। देन अभी इसको छोड़ देते हैं, ये गलत है, and you will have to tell why this is wrong. Who is the founder of Theosophical Society? जब हम करेंगे important religious movement और वो सब तो हम करेंगे उस पे बात, but अभी के लिए आप समझो। Then another option is that Annie Besant was once the president of INC. So if you would have done this question का ढंग से, ठीक है, देखो ये समझो इवन दो इट इज 2015 और ये पहले आया था, बट अगर आपने फिर यहाँ से भी पढ़ा होता तो आपने एनी बेसेंट के बारे में पढ़ा होता है, ये वाला ऑप्शन आप सही मार्क कर लेते, मतलब आपको पता होता कि दिस इज अ रॉन्ग वन एंड द आंसर शुड हैव बीन एनी बेसेंट, राइट।
Similarly, personality wise, if you see again Dadabhai Naoroji पे भी you will see 2012 में एक क्वेश्चन था that the most effective contribution made by Dadabhai Naoroji to the cause of national movement was that he exposed the economic exploitation of India by British. Of course, we have done that. ठीक है, बाकी दोनों गलत हैं. You can just pause and read the options, and when again personality wise जब हम करते हैं तो हम सारे options को explore करते हैं. So this is how you are preparing. आप एक टॉपिक पढ़ रहे होते हो बट आप देखो 4 से 5 क्वेश्चंस हमने यही कर लिए एंड देयर आर मेनी क्वेश्चंस दैट विल कम आउट फ्रॉम द कांग्रेस सेशंस जब हम ये रिमेनिंग टाइम का भी करेंगे. देन सिमिलर विल गो फॉर इफ यू स्टार्ट फाइंडिंग देम इन ऑप्शन. लेट्स से सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, तो आप सर्च करो PYQs में कि क्या ये ऑप्शंस में कहीं कहीं और आए हैं. हैज सरोजनी नायडू बीन फिगर्ड इन डिफरेंट ऑप्शंस. आपको मिलेंगे ऐसे क्वेश्चंस. ठीक है, तो वो एक अलग होमवर्क है जो कि करने की जरूरत है एंड दैट विल फिगर आउट. ओके, चलो अभी के लिए तो दिस वन इज डन. नेक्स्ट इज ब्रिक्स इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. नाउ विल सी अबाउट ब्रिक्स. ठीक है, अभी इसको देखते हैं. Now before we see the details of BRICS, let's just first see again a couple of questions. 2014 में they ask you specifically to BRICS. ठीक है, with reference to a grouping of countries known as BRICS, consider the following statements. Forget about the options right now, just see the question. ठीक है, फर्स्ट समिट पूछा गया एंड कौन सा कंट्री लास्ट था ज्वाइन करने के लिए. देन 2015 में very immediate year they asked another question, Fortaleza Declaration. Again there are certain options out of which BRICS is also an option and actually that's the correct as well. ठीक है, that's the answer also. But अब आप समझो, firstly we'll try to understand why did they ask the question then. Now these two questions are directly related to BRICS. There are several other questions also asked in the previous years where BRICS was one of the option. It was not the right answer but still an option. So BRICS anyway becomes an important international organization from PYQ perspective. But that's equally important from current affairs perspective. In fact, more important from current affairs perspective. I'll just show you in some time. First, let's understand why did they give you this question in 2014. ठीक है, ब्रिक्स ही क्यों पूछा और कुछ क्यों नहीं पूछा. देखो 2014 का एक न्यूज़ है, 6th ब्रिक्स समिट एंड उसका ही डिक्लेरेशन का नाम है फोर्टालेजा डिक्लेरेशन. तो पहले ब्रिक्स के बारे में एक साल पूछा एंड नेक्स्ट ईयर सीधे फोर्टालेजा डिक्लेरेशन. अब किसी ने भी अगर ब्रिक्स समिट को फॉलो करा होगा एज न्यूज़, दे वुड हैव आंसर्ड इट. आई होप यू आर गेटिंग द एग्जैक्ट क्लैरिटी. ठीक है, बट यहाँ जो डिटेल्स पूछे हैं हमें ब्रिक्स के ऑफिशियल वेबसाइट से भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, बट आई हैव अटैच्ड इट फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जो इंडिया की तरफ से ब्रिक्स की ब्रीफिंग की गई है उस पर मैंने अटैच कर दिया है. आप उसके बारे में आराम से इसको पढ़ सकते हो. ठीक है, आई एम जस्ट शोइंग इट टू यू, यू कैन जस्ट रीड दिस. आप देखोगे क्या क्या दिया हुआ है कि इट ब्रिंग्स टुगेदर 5 ऑफ द लार्जेस्ट डेवलपिंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, रिप्रेजेंट अराउंड 41% पॉपुलेशन, 24% ग्लोबल GDP एंड 16% ग्लोबल ट्रेड. ठीक है, बाकी उसके बारे में कि टर्म कब यूज हुआ. फर्स्ट देखो, फर्स्ट ब्रिक्स समिट कहाँ हुआ था. दे हैव मेंशन इट वाज हेल्ड इन रशिया 2009 में. एंड ब्रिक इनिशियली इट वाज 4 कंट्री, देन ब्रिक्स बना व्हेन साउथ अफ्रीका इंक्लूडेड इन इट. ठीक है, 2010. तो अब देख लो, फर्स्ट समिट इन्होंने दिया है रियो डी जेनेरियो में. ठीक है, जो हम इन्वायरमेंट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट में पढ़ते हैं, रियो डी जेनेरियो. गलत हो गया, साउथ अफ्रीका वाज द लास्ट. सही हो गया, सिंपल सा है. दिस इज ऑल्सो सिंपल वन टू बी डन. नाउ सी, नाउ लेट्स सी सम ऑफ द करंट अफेयर्स पॉइंटर्स. एक है अप्रैल 2013 का न्यूज. ठीक है, अप्रैल 23 का जो न्यूज़ है, अगेन दैट इज लाइक अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस टू बी डन फॉर दिस पर्टिकुलर ईयर, which talks about de-dollarization and BRICS was a keyword here. Why? Because it is the BRICS nation. अभी के लिए आपको ये 5 नेशन ध्यान रखने हैं. Immediately I'll change this to another number, but you will have to hold on for that. But अभी के लिए ये 5. ठीक है, nations are in the process of creating a new currency for payments. अब यही करेंसी के बारे में ये इन्फॉर्मेशन है एंड यहाँ पे दे हैव टॉक्ड अबाउट अ प्रोसेस और दे आर टेकिंग द स्टेप्स टुवर्ड्स डी-डॉलराइजेशन. क्योंकि अभी डॉलर जो है वही दैट्स द यू नो डोमिनेंट करेंसी, प्रोमिनेंट करेंसी, कुछ भी कह लो. तो उसके ऑल्टरनेटिव काइंड ऑफ एक नई करेंसी की बात हो रही है. आप इसको डिटेल में पढ़ लेना या फिर जस्ट सर्च अबाउट इट. ये विजन के मैगजीन से क्लिप ली हुई है. बट दैट इज़ वन न्यूज़ ऑन ब्रिक्स. ठीक है, करंट अफेयर्स पार्ट 1. और देखो अगस्त 2023 ब्रिक्स की 15 समिट हुई. तो भाई जब उसके पुराने समिट्स भी इंपॉर्टेंट थे, ठीक है, तो ये तो नहीं बोल सकते हो ना कि ये इंपॉर्टेंट नहीं होगा. अच्छा, अब इसके बारे में यू कैन जस्ट रीड फ्रॉम हियर इस समिट के बारे में. इस समिट से रिलेटेड एक चीज़ और मैं आपको पहले दिखाऊं. ये ब्रिक्स के बारे में है. ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर अटैच्ड. आई विल शेयर दिस PDF. ठीक है, इन द टेलीग्राम चैनल, तो यू डोंट हैव टू वरी. बट आई विल ऑल्सो रिक्वेस्ट कि आपके पास नोट्स होने चाहिए ताकि आप हमेशा देखो इमेज के थ्रू तो नहीं जा सकते हो.
सो रीड अबाउट ऑल ऑफ दोज थिंग, मेजर इनिशिएटिव्स ऑफ ब्रिटिश, कंसेप्शन कब हुआ, कौन कौन से कंट्री थे, लास्ट कौन सा आया, एटसेट्रा. नाउ इन द आउटकम ऑफ ब्रिक्स समिट यू रीड वन लाइन दैट दे आर प्लानिंग फॉर एक्सपेंशन. ठीक है, अब एक्सपेंशन में उन्होंने 6 नए मेंबर कंट्रीज को ऑफर करा. ठीक है, एंड दैट वाज सपोज टू कम इनटू एग्जिस्टेंस फ्रॉम जनवरी 2024. दिस न्यूज इज ऑफ अगस्त 2023. ओके, दैट इंक्लूडेड अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया एंड यूएई. ठीक है, बाकी और देखो, अब मान लो दे कैन आस्क यू दैट जोहान्सबर्ग 2 डिक्लेरेशन इज रिलेटेड टू, दैट कैन ऑल्सो बी अ क्वेश्चन बिकॉज फोर्टालेजा डिक्लेरेशन पूछ चुके हैं. बट चलो अभी उस पर नहीं आते हैं. आप ये देखो 6 कंट्रीज की बात की गई है, बट वेन एक्चुअली, ठीक है, जनवरी में ही होना था, तो 1 फेब को न्यूज आ गया कि 5 कंट्रीज ऑफिशियली ज्वाइन द ग्रुप ऑफ इमर्जिंग नेशंस. ठीक है, अब 6 को ऑफर मिला था, 5 of them accepted, that is Saudi Arabia, Egypt, Ethiopia, Iran and UAE. So which is the country which is not accepting or which has not accepted? That is Argentina. तो ये भी आपको ध्यान रखना है, because now if they ask you that how many members are in BRICS, तो maybe you will remember कि okay 10. First 5 तो you will anyways remember, it's easier, है ना, इनके नाम इनिशियल से आप कर सकते हो. Remaining 5 also in case you choose to remember, but Argentina in my ओपिनियन, मतलब एक मेरा गैसिंग है कि ज़रूर वो ऑप्शन देंगे, क्योंकि अर्जेंटीना का हो सकता है पहले किसी ने न्यूज़ पढ़ा होगा कि उनको भी ऑफर किया गया हो, बट दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेड. सो ओनली दीज 5 हैव एक्सेप्टेड. ठीक है, सो दैट इज़ वन थिंग यू विल रिमेंबर. अभी भी ब्रिक्स के इन्फॉर्मेशन पोर्टल पे अभी ये 5 कंट्रीज़ के बारे में ही इन्फॉर्मेशन है, द हेड्स के बारे में इन्फॉर्मेशन है. अनदर थिंग, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट इस पर क्लिपिंग्स लगा दी हैं. ठीक है, वाई हैव आई इंक्लूडेड दिस? बिकॉज दिस गिव्स यू एडिशनल इन्फॉर्मेशन. फॉर एग्जाम्पल, जो भी ब्रिक्स के मेंबर्स हैं वो और भी किस किस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर है, दे आर दी मेंबर्स ऑफ व्हाट ऑल अदर ऑर्गेनाइजेशन, वो भी मेंशन है. जैसे कि मान लो रशियन फेडरेशन की बात कर रहे हैं, सो दैट्स अ मेंबर ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, CIS. ठीक है, देन कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटेड ऑर्गेनाइजेशन, यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन. देन रशिया, चाइना आर मेंबर्स ऑफ SCO, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन. देन APEC, एशिया पैसिफिक. देन ब्राजील के बारे में दिया हुआ है, साउथ अफ्रीका के बारे में दिया हुआ है, इंडिया के बारे में भी दिया हुआ है. So you will also get to know a lot many information from here which can come handy in your prelims. Another thing I have attached is यही मैप के फॉर्म में कि जो नई कंट्रीज का एडिशन हो रहा है, ठीक है, तो वो एक्सपेंशन आपको मैप में विजुअलाइज करना है. इट्स जस्ट दैट यू हैव टू रिमेंबर कि अर्जेंटीना ने फाइनली एंड में हाँ नहीं कहा था, बट इनिशियली बिकॉज दैट वाज ऑल्सो ऑफर्ड, तो मैप में इसको भी इंक्लूड कर दिया जाता है. आप इसको हटा लेंगे. ये न्यू मेंबर्स जो हैं आप यहाँ से याद रखेंगे, और बाकी आप पुराने मेंबर्स को भी मैप पे लोकेट कर लेंगे. ठीक है, सो दैट्स योर वर्क. नाउ यू विल डू दिस. चलो और देखते हैं. थर्ड हमें करना था DPSP, सो वी आर गोइंग टू डू 3 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स. वाई 3? बिकॉज आप खुद ही देखो इतने सारे, उसमें जो 39 है उसमें ऑलरेडी इतने सारे हैं, सो दैट बिकम्स वेरी लेंदी फॉर यू. एंड आवर होल टारगेट इज कि हमें छोटे छोटे चंक्स में करना है. ठीक है, ओवर प्रेशर नहीं लेना है. आफ्टर यू आर डन योर स्टडीज फॉर द डे, इफ़ यू आर जस्ट सीइंग दीज वीडियोज़, ये कोई आपको पढ़ाई करवाने के लिए नहीं है. दिस इज जस्ट टू हेल्प यू इन योर प्रेपरेशन. ठीक है, एक डायरेक्शन देने के लिए. पढ़ाई की आपकी खुद की होनी है. इफ़ यू रिलाई ऑन मी और एनी वन एल्स, वो तो काम नहीं आने वाला. सो विल जस्ट ट्राई टू डू थिंग्स इन चंक्स. नाउ बिफोर अगेन आई गो इन टू द डिटेल्स, यू सी सर्टेन पॉइंटर्स. 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3, 4, 5, 6, 7. 7 questions I have attached on DPSP. Only based on what we are going to see here and 2 articles here. ठीक है, but main DPSP starts from this. ये तो बस उनके बारे में है. इतने के बेसिस पे हम इतना कर रहे हैं. Then we'll in the next lectures when we proceed to the further DPSPs, more PYQs I'll add जो उन सेक्शन से आंसर हो पाएंगे. अभी हम सिर्फ इतने को देख रहे हैं. ठीक है, देखो तो आर्टिकल 38 क्या कहता है? स्टेट टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल. सो इट्स अबाउट एक वेलफेयर स्टेट की बात हो रही है. ठीक है, वेलफेयर लोगों के लिए, लोगों के वेलफेयर के लिए बात हो रही है. एंड इन दिस सोशल ऑर्डर द स्टेट इज सपोज टू गिव जस्टिस इन सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल मैनर. ठीक है, सो दैट इज समथिंग यू विल रिमेंबर. अदर थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर, नाउ दीज आर द सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स दैट यू हैव टू रिमेंबर. ठीक है, लक्ष्मीकांत में आपने पढ़ा होगा कि ये 3 तरीके के हैं, लिबरल प्रिंसिपल, गांधीयन प्रिंसिपल, सोशलिस्ट प्रिंसिपल. तो उसी को मैंने यहाँ पे भी आपके लिए डिवाइड कर दिया है. दूसरी चीज़ दैट यू विल रिमेंबर दैट हियर दे टॉक अबाउट मिनिमाइजिंग द इनकम इनइक्वालिटीज़. ठीक है, एलिमिनेट इनइक्वालिटीज़ इन स्टेटस, फैसिलिटी, अपॉर्चुनिटी, इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स के लिए. सो ये 2 इंपॉर्टेंट चीज़ आप याद रखेंगे. मूविंग ऑन, अभी मैं क्वेश्चंस दिखाऊंगी.
जस्ट होल्ड ऑन, लेट्स जस्ट फर्स्ट रिवाइज, ठीक है, फर्स्ट रिवाइज करेंगे, इतना ही याद रखेंगे फिर आगे बढ़ते हैं। 39 कहता है सर्टेन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय द स्टेट। तो अब ये पूरी लिस्ट ऑफ पॉलिसीज है जो वो कह रहे हैं कि आपको फॉलो करना चाहिए। फर्स्ट, ऑल द सिटीजन शुड गेट राइट टू एन एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, चाहे मैन हो विमेन हो, बराबरी से सबको लाइवलीहुड का एडिक्वेट मीन्स मिलना चाहिए। देन मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी, कम्युनिटी के जो, सो टॉकिंग अबाउट द ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ द मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी, ठीक है, ये इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए दैट इट इज सर्विंग द कॉमन गुड, बेसिकली इट इज टू सबसर्व द कॉमन गुड, मतलब बाकी लोगों के भलाई के लिए जो है इसका डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। नेक्स्ट इज ओके, now 39B and C are very important, ठीक है, whenever you study about the contradictions between or relationship between fundamental rights and DPSP, these are the two articles that figure out, तो वो भी आपको उस perspective से भी अभी याद रखना है। next is operation of the economic system does not result in the concentration of wealth, remember this keyword अभी बहुत काम आने वाला है, ठीक है, and means of production to the common detriment, मतलब economic system इस तरीके से काम नहीं करना चाहिए, it shouldn't operate in a way that it results in wealth concentration or means of production to the common detriment, लोगों का उससे नुकसान हो। Then equal pay for equal work for both the men and women, health and strength of workers, whatever, men or women worker, any worker. So health and strength of worker, tender age of children are not abused, है ना, मतलब workers, children सबका ध्यान रखना है। And citizens are not forced by economic necessity to enter avocations unsuited to their age or strength. इतना complex language से परेशान नहीं होना है, just understand it in the simple language, कि किसी भी तरीके से उनको इस तरह की इकोनॉमिक नेसेसिटी का सामना ना करना पड़े कि अपना घर चलाने के लिए उनके एज और स्ट्रेंथ के बियॉन्ड उनको काम करना पड़े, ठीक है, बेसिकली प्रोटेक्टिंग द बेसिक राइट्स ऑफ वर्कर्स एंड चिल्ड्रन। चिल्ड्रन शुड बी गिवन द अपॉर्चुनिटीज एंड फैसिलिटीज टू डेवलप इन अ हेल्दी मैनर, ठीक है। देन कंडीशंस ऑफ फ्रीडम एंड डिग्निटी एंड चाइल्डहुड एंड यूथ प्रोटेक्ट होना चाहिए अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन एंड मोरल मटेरियल अबैंडनमेंट। कीवर्ड्स आपको बस ध्यान रखना है, क्रक्स आपको समझना है, एग्जैक्ट कीवर्ड्स मतलब एग्जैक्ट लाइन्स आपको याद नहीं चाहिए, बस अंडरस्टैंड जो भी मैंने हाईलाइट करा है, इन कुछ चीज़ों को पहले ध्यान दो, ठीक है। नेक्स्ट देखो 39A, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, कि स्टेट को इस तरीके से लीगल सिस्टम को ऑपरेट करना चाहिए दैट जस्टिस इज प्रमोटेड एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी इज गिवन, ठीक है। फ्री लीगल एड मिलना चाहिए जिसके लिए हमारे पास अथॉरिटीज़ भी हमारे पास ये हैं प्रोविजंस है, लाइक यू नो वी हैव नालसा एंड सालसा जहाँ पे लीगल सर्विसेज अथॉरिटी बनाई गई हैं। यू विल स्टडी ऑल ऑफ दीज इन लक्ष्मीकांत ऑल्सो। और इस तरीके से लेजिस्लेशंस या स्कीम्स बनना चाहिए सो दैट वी इंश्योर द अपॉर्चुनिटीज टू सिक्योर जस्टिस, ठीक है। सारे लोगों को इकोनॉमिक या अदर डिसेबिलिटीज की वजह से कोई प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। सो बेसिकली इक्वल जस्टिस फॉर एवरीवन एंड फ्री लीगल एड शुड बी गिवन सो दैट समबडी हू कैन नॉट अफोर्ड लीगल फैसिलिटीज स्टिल गेट्स दैट, ठीक है। ये क्रक्स आपको सिर्फ जानना है। अगेन क्रक्स यू हैव अंडरस्टूड फ्रॉम हियर एंड दिस वाज अबाउट द जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। नाउ यू सी द क्वेश्चन। हमने 3 ही आर्टिकल करे। देखो 2013 का एक क्वेश्चन कहता है इकोनॉमिक जस्टिस एज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन प्रोवाइडेड इन। अब आपको एक तो पता है कि इकोनॉमिक जस्टिस हैज बीन गिवन इन डीपीएसपी, फॉरगेट अबाउट एनीथिंग राइट नाउ, डीपीएसपी में तो है ना, ये तो पक्का हो गया। तो ये वाला ऑप्शन तो गया और ये वाला भी गया, ठीक है। फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी एंड प्रीएम्बल एंड डीपीएसपी। नाउ इफ यू हैव रेड प्रीएम्बल यू वुड नो दैट हमने स्टार्टिंग में ही सारी चीज़ों की बात की, इक्वालिटी, लिबर्टी, जस्टिस, वहीं पे सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस की बात है, तो यू वुड ऑलरेडी रीच टू द राइट कंक्लूजन, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब मान लो इमेजिन दिस क्वेश्चन कमिंग एज पर द 2023 ट्रेंड, ये तो 13 में था, बहुत आसान होता था हैंडल करना इफ योर कॉन्सेप्ट्स वर क्लियर। बट first point you have to remember that you have to read each and every line very carefully because they can use any line, any keywords from there in your question. अभी तो पूछ लिया तो मैंने ये highlight कर दिया, ये भी आगे पूछा हुआ है इसलिए मैंने highlight कर दिया। But what if it was not there? Then for us all of these things become important, right? Second, let's assume that it is as per the 2023 pattern. तो अब उसमें वो क्या पूछेंगे? They'll give you preamble, fundamental right, DPSP, fundamental duty, etc., etc., and they'll ask you how many of them have economic justice as one of the objectives. अब उसमें you will get confused about fundamental rights or duties, etc. यहाँ तो 2 ही easy option था जिसमें DPSP you already know, तो preamble को choose करना आसान था because preamble भी हम पढ़ते हैं तो हमको पता होता है। बट अगर ये सब एक साथ देके पूछ दिया जाएगा how many,
then you will get confused and likely that you will mark the answer wrong if your concepts are not clear. ठीक है. Then again 2013 में according to the constitution, which of the following are fundamental for the governance of the country? Let's say you have not done any topic concept. Just seeing this question, 99% of you would mark fundamental rights or fundamental rights and duties, because you would feel fundamental basic है, rights है, यही तो होना चाहिए. But the answer is DPSP. How do we know that? See this article. यहाँ तो हमने 38 से स्टार्ट किया, विच इज़ द स्टार्टिंग ऑफ इट. ठीक है, लेकिन हम एडिशनल भी करें, इसलिए मैंने आपको बोला था इफ़ यूल रिमेन विथ मी थ्रू आउट द वीडियो यू विल गेट सर्टेन न्यू थिंग्स ऑल्सो विच आई हैव नॉट डिस्क्लोज्ड इन द इंट्रो कि हाँ भाई हेडिंग में हम ये कर रहे हैं. वहाँ 3 आर्टिकल लिखा है, पर हम कर तो एक्स्ट्रा भी रहे ना, बिकॉज इट इज़ इंपॉर्टेंट टू बी अंडरस्टूड. बट दिस रिवॉर्ड इज फॉर एनी वन हु इज सिंसियरली अटेंडिंग द होल ऑफ वीडियो. वरना एवरेज ड्यूरेशन में लोग 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट से ज़्यादा नहीं देखते हैं. ठीक है, चलो पार्ट 4 DPSP में 36 आर्टिकल डेफिनेशन का है, जो कहता है कि स्टेट हैज़ द सेम मीनिंग एज इन पार्ट 3, मतलब फंडामेंटल राइट वाला. तो वो तो चलो कोई नहीं. अब ये देखो 37, एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स कंटेन्ड इन दिस पार्ट. ये साफ साफ लिखा है दैट द प्रोविजंस कंटेन्ड इन दिस पार्ट, यानी पार्ट 4 ऑफ DPSP, शैल नॉट बी इन्फोर्सिएबल बाय एनी कोर्ट. ये कोई कोर्ट द्वारा इन्फोर्सिएबल नहीं होगा. बट दीज प्रिंसिपल्स आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री. ठीक है, बिल्कुल सीधा सीधा क्लियरली मेंशन है, दे आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री. नाउ रीड द क्वेश्चन, विच आर फंडामेंटल, विच इज फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री. तो अब आपको समझ आ रहा है, इवन इफ देयर हैज बीन सम अदर ऑप्शंस एसोसिएटेड टू इट, यू विल मार्क इट रॉन्ग, ओनली दिस, बिकॉज ये लिखा हुआ है आर्टिकल में. अब समझ आ रहा है एक एक लाइन की इंपॉर्टेंस को पढ़ना. ठीक है, अब आगे देखो. सी दिस क्वेश्चन 2017, with reference to constitution, the DPSP constitute limitations upon legislative और executive. ठीक है, ये दोनों पे ही लिमिटेशन नहीं लगाता है. Why? Because it cannot be enforced by court. ये डायरेक्टली नहीं लिखा है. This is an indirect inference that you have to understand. Limitations तब लगाता अगर वो फंडामेंटल राइट होता, because for that then you can go to the court. जब यहाँ पे कोर्ट जाने का कोई प्रोविजन ही नहीं है तो none of them. ठीक है, आगे देखो. द DPSP के बारे में 2015 में द प्रिंसिपल स्पेल आउट द सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी. इवन दो वी आर नॉट कंप्लीटेड द लिस्ट ऑफ DPSP, स्टिल यू कैन मेक सेंस दैट सोशियो एंड इकोनॉमिक टॉपिक्स आर हैंडल्ड हियर. इकोनॉमिक हमने पे और ये सब की बात की, सोशल में हमने वर्कर के सिचुएशन, बच्चों के बारे में, ये सब पे बात कर लिया. ठीक है, देन तो ये तो सही हो गया. देन द प्रोविजंस आर नॉट इन्फोर्सिएबल बाय एनी कोर्ट, है ना, सेम लाइन लिखा हुआ है. अब अगर आपको सेम एग्जैक्ट लाइंस की क्लैरिटी है तो किसी भी क्वेश्चन को मार्क करना सही गलत मतलब दिक्कत नहीं आएगी. ठीक है, नाउ सी दिस क्वेश्चन 21, अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ वायलेट्स व्हाट. फिर हमें लग सकता है कि यूजुअली तो ये राइट की बात करता है, बट आप यहाँ पे देखो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होना चाहिए, हमने बात किया है ना. तो कहाँ दिया हुआ है, ये DPSP में दिया हुआ है, तो इट वायलेट्स DPSP. देन 2020 ऑन 2015 दोनों में सेम क्वेश्चन पूछा हुआ है. देखो रिपीटेड है कैसे. द आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट इज गिवन इन एंड विच पार्ट डिक्लेयर्स द आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट. अभी हमने जस्ट पढ़ लिया DPSP, हमने पढ़ा है, यहाँ पे वेलफेयर की बात हो रही है, वेलफेयर स्टेट की बात हो रही है. ठीक है, डू यू सी हाउ मेनी क्वेश्चंस यू कुड हैव गॉट राइट इफ यू वुड हैव tackled it the correct way. And these are the questions from DPSP only from these 3 articles and ये इस वाले से. तो basically these 4 articles ये सारे इसी से solvable थे. There are many other questions from DPSP which will be solvable as we proceed with the other articles. Now it will not be difficult for you to remember these 3, 4, 5 articles. ठीक है, ये अभी अगर कर लेंगे तो इतना difficult नहीं होगा, but that whole list अगर करने बैठ जाओगे 36 से स्टार्ट होके 51 तक स्टार्ट करने जाओगे, इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर एक साथ. सो तोड़ तोड़ के करेंगे. लास्ट हम कर रहे हैं कुछ नेशनल पार्क्स. आई हैव गिवन यू द नेम्स ऑफ 4 नेशनल पार्क इफ यू वुड हैव सीन इट हियर. ठीक है, दिस इज फ्रॉम एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, सबसे फेवरेट टॉपिक. एंड the reason I've chosen these 4 for this particular video, I'll of course do the remainings in different videos so that it's not difficult for you to remember. बिकॉज ये सीधा यही 4 ऑप्शन में आया हुआ था 2015 का एक क्वेश्चन में. ठीक है, ये जो क्वेश्चन है विच नेशनल पार्क इज यूनिक इन बीइंग अ स्वैम्प
with floating vegetation that supports a rich biodiversity. Don't go by the highlighted path. मैं वो word से search कर रही थी, इसीलिए वो search में filter होके आया है. The answer is this. ठीक है, the answer is this. Kebul Lamjao National Park. Firstly, we'll see. This was asked in 2015. So why was it asked? ये देखो 2015 का न्यूज है. केबुल लामजाओ द वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क. ठीक है, अब इसका डिटेल अगर आप पढ़ते तो एनीवेज यू वुड हैव अंडरस्टूड दिस. ठीक है, यही पूछा गया और ये पूरे वर्ल्ड का ही है, नॉट ओनली ऑफ इंडिया. तो है ना इंपॉर्टेंट न्यूज, तो 15 में आया तो पूछ लिया. आ रही है बात समझ में? नाउ अबाउट केबुल लामजाओ, चाहिए है कहाँ पर, आप फिगर आउट करोगे मणिपुर. ठीक है, और लोकतक लेक भी हमेशा न्यूज में रहता है, इससे भी क्वेश्चंस आए हुए हैं. तो मणिपुर का वो आप याद कर लोगे, उसकी डिटेल मैंने सब यहाँ पे लगा दी है. ठीक है, लोकतक के बारे में भी लगा दिया है, पार्क के बारे में भी लगा दिया है. उसका एक मई 2023 का करंट अफेयर्स भी है, दैट वाइल्ड लाइफ पैनल इज सेट टू स्क्रूटनाइज द मणिपुर लेक रिजॉर्ट प्रपोजल, क्योंकि लोकतक इज द लार्जेस्ट नेचुरल फ्रेश वाटर लेक इन द नॉर्थ ईस्ट. तो ये भी याद रखेंगे. और उससे रिलेटेड कुछ प्रपोजल्स आए थे जिसको कि स्क्रूटनाइज किया जाएगा, बट बिकॉज इट वॉज इन द न्यूज आई जस्ट अटैच्ड इट. बाकी यहाँ से इसमें बहुत से फैक्ट्स यू आर गोइंग टू गेट, रीड देम आउट. ठीक है, तो इसको मैप पे मार्क कर लेना. साथ में ना ये चारों को अपने अपने स्टेट्स के साथ मैप पे मार्क करते अभी से चलना. डोंट डू इट एक ही दिन बैठ के पूरा इंडिया का मैप ले रहे हैं, सारे स्टेट्स को बैठ के मार्क कर रहे हैं, सारे नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, टाइगर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. दिस इज द मोस्ट, मतलब क्या ही मैं बोलूँ, आई डोंट हैव द राइट वर्ड, बट just it shouldn't be done that way. It looks good, you feel good, you have done so many, but from perspective of remembering it's not possible. Yes, if somebody is teaching that in one go, for them it's an obligation. उनको एक ही क्लास में या 2 क्लास में उनकी मजबूरी होती है खत्म करने की, तो उन पे हम क्वेश्चन नहीं उठा सकते. बट आपको समझना है कि हाउ डू यू टैकल इट. इवन इफ यू अटेंड एनी लेक्चर फॉर दैट मैटर, और आपने एक दिन में सारा मार्क कर लिया, कर जरूर लो, पर याद डेली 3 से 4 से 5 ही करो, नहीं तो नहीं हो पाएगा. एंड दैट इज वाई दीज टॉपिक्स शुड बी डन वेल इन एडवांस. नहीं तो एंड में हाउ विल यू रिमेंबर. बट इफ आई आस्क यू टू रिमेंबर फॉर दीज 4, दैट विल नॉट बी डिफिकल्ट फॉर यू ना. एटलीस्ट मान लो याद रखना है स्टेट, तो ये मणिपुर समझ आ गया. बाकी देखते हैं, भितरकनिका, क्योलाडियो घाना, सुल्तानपुर, मैंने सबका अटैच कर दिया. एंड ऑल ऑफ देम आर फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाइट्स, सो अंडरस्टैंड. भितरकनिका देखो ओडिशा में है, सो रीड अबाउट इट. ये इससे भी क्वेश्चन अलग अलग टाइम पे आए हुए हैं. 23 में भी एक मैंग्रोव वाला मेरे ख्याल से क्वेश्चन जो है वो आया था. जस्ट सी, दिस इज 2023. Which of the following is the best example of repeated falls in sea level giving rise to present day extensive marshland? I am not telling this is the right answer or not the right answer. I am just telling this is in the option. ठीक है, वहां पर है. ये तो हमने अभी कर ही लिया. 2 बार भितरकनिका आ गया, एक और बार आया हुआ है टाइगर रिजर्व के ऑप्शन में 2012 में, और एक बार और आया हुआ है 2011 में. So you are seeing कि these options are also repeated frequently even if as options. अगर वो आंसर ना भी हैं तो रीड कर लेना हर कुछ. whenever you are finding information about any national park or any protected area, do it from the official sources, official websites. ठीक है, इधर उधर मत भटकते रहो, कोचिंग वालों ने कर दिया और किसी ने अपना ब्लॉग डाल दिया और वो सब. don't go by that. You have the official website ना, तो why don't you use it? Then next was सुल्तानपुर. ठीक है, बर्ड सेंचुरी भी है, नेशनल पार्क भी है. देखो सुल्तानपुर नेशनल एंड बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है? हरियाणा में. ठीक है, गुड़गांव, जो कि अब गुरुग्राम बन चुका है. सो रीड अबाउट इट. एंड देन यू हैव क्योलाडियो नेशनल पार्क, कहाँ है? राजस्थान में. ठीक है, सो जस्ट रीड अबाउट देम, अबाउट द स्पीशीज. एंड जैसे मान लो कि कोई रिवर है या कोई और भी स्पेसिफिक है, वहाँ का कोई स्पेशल वेजिटेशन हो गया, कोई स्पीशी है, वो सब आप पढ़ लेंगे. ठीक है, तो ये 4 आपको अच्छे से डिटेल में प्रिपेयर करना है. बट जितना बेसिक डिटेल्स में अटैच कर सकती थी, आई हैव डन इट. बाकी देर इज नो एंड टू इट, सो यू कैन जस्ट क्विकली ब्राउज एंड चेक फ्रॉम इवन द वेब एंड गेट द इंफॉर्मेशन. अब आप मुझे बताओगे, वी हैव स्पेंड अराउंड 40 मिनट्स बाई फार, इवन लेस देन 40 मिनट्स. तो अब आप ये समझो कि इसमें क्या ये 40 मिनट वर्थ ऑफ सेशन था या नहीं था. इफ़ यू रियली फील, बिकॉज इसको प्रिपेयर करने में मैंने बताया था 2.5 घंटे लगे थे, 40 मिनट्स अभी लगे हैं, 10 से 15 मिनट अपलोडिंग शेयरिंग सब मिला के लगेगा. सो आप समझ लो मोर देन 3, ऑलमोस्ट 4 आवर्स का ये काम पड़ गया मुझे. 3.5 to 4 आवर्स का काम पड़ गया एक छोटा से सेशन के लिए. Now you please understand and you let me know if you are liking these sessions, then only I'll upload the further ones and then we'll see how do we proceed. I try to give you only the Kamka content and the best possible quality content, and also it's not from my mood or something, it's just based on PYQs. I have shown you enough of that. This PDF, particular PDF, I'll share in the Telegram channel, the link is in the description.
rest it depends on your feedback and I will just help you out. ठीक है, चलो, have a great time ahead, have a great preparation time ahead and I'll see you then. Bye bye, take care.